Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to Sigma classes. Today we'll be starting with class 8 subject science chapter number 1, which is exploring the investigative world of science. This chapter is mainly for your own understanding. It's mainly theoretical. It only talks about basic scientific facts and whatever you find around you in your environment. Okay, for example, why do we fall sick? What are microbes? Why ball falls down when we throw it upwards? What causes storms and cyclones, etc., etc. So it is for your own understanding. Please go through it once. It is very easy. It's very easy language. You can understand it well, and if not, then please do comment down below and I'll be explaining it to you in my next video. So starting with chapter number 2, coming to chapter number 2, which is invisible living world beyond naked eyes. This is important chapter, okay, because this mainly talks about organisms, microorganisms and their types. Okay, so first, what are organisms? Living plants and animals are called organisms. All the plants, all the living animals will be included in this. But make sure the key word here is living. They should be living. Okay. What is a cell? The cell, as we all know, is the basic fundamental unit of our body. This is the basic diagram of cell. This is called a cell. It has cell membrane, which is the outer layer of the cell, cytoplasm, which is the fluid that is filled inside the cell, and nucleus, that is mainly at the core of the cell. Okay. Now coming to cell wall, we have understood these three parts of cell, but we have not I have not mentioned here cell wall. So what is cell wall? Cell wall is the extra outer layer of the cell. It lies somewhere here. It acts as a protective shield for cell membrane. Okay, so that is why it is called wall. जैसे हमारे घरों में wall होती है, वो हमें protect करती है, वैसे ही सेल के अराउंड एक वॉल होती है जो सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए हम इसको सेल wall कहते हैं. Okay, now there are different types of cell, but in our body what we mainly understand, what we mainly read is muscle cell and nerve cell. What is a muscle cell? It is in spindle shape, something like this. It has somewhat like ये ऐसा शेप होता है इसका. ओके, दिस इज अ मसल सेल. My drawing is not good, but for your own understanding, this will suffice. Okay. What is nerve cell? They are very long and branched. They are also known as neurons. Make sure you learn this term, neurons. Neurons क्या होते हैं? Nerve cell का ही दूसरा नाम neurons होता है. इसमें एक स्टार लाइक ऐसे बीच में उसके हेड पे एक सेल होती है, विच उसका टेल ऐसा लंबा सा होता है, एंड देयर इट हैज़ ब्रांचेस. अगेन दिस इज़ नॉट वेरी क्लियर, वेरी फेयर, बट इट विल सफाइस. इट इज़ गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. मतलब एक समझने के लिए ये डायग्राम ठीक है. नर्व सेल मोर और लेस ऐसी दिखती है. अब सेल का शेप कैसा हो सकता है? दे कैन बी राउंड, जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. दे कैन बी लॉन्ग लाइक दिस, एंड दे कैन बी वेरी थिन, बहुत पतली सी भी हो सकती हैं, लंबी हो सकती हैं, और राउंड शेप की हो सकती हैं. नाउ यहाँ तक हमने समझ लिया. ऑल गुड. ओके, नाउ कंटिन्यूइंग. व्हाट इज़ अ टिश्यू? अब बताइए टिश्यू क्या होता है. मैंने यहाँ पे एक एक लाइन में हर एक टर्म को एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है. अगर आपको दिख रहा हो तो, व्हाट इज़ अ टिश्यू? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड अ टिश्यू. सेल बहुत टाइप की हो सकती हैं, बट एक जैसी सेल्स जब एक साथ आती हैं तो दे फॉर्म टिश्यू. ओके, एंड डिफरेंट टिश्यूज़, अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ जब एक साथ आते हैं तो दे फॉर्म एन ऑर्गन.
जब कई सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सो ये एक हायरार्की बन गई, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ओके, ये आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है, MCQ में आ सकता है, इन एनी वे इट कैन कम, बट इट्स वेरी इजी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अब बेस्ड ऑन सेल कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनी मीन्स वन, पता चल रहा है, यूनी मीन्स वन, दैट मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? वायरसेस, अमीबा, पैरामीशियम, एल्गी। मल्टी सेलुलर मतलब जिनके पास बहुत सारे सेल्स हैं। बहुत सारे सेल्स होंगे तो ऐसा सेल ग्रुप में फॉर्म करके वो टिश्यू भी बना सकते हैं। ऑर्गन मतलब एक तरह की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। दे हैव मैनी सेल्स, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हम लोग, ह्यूमंस। ओके, ये तो बात की हमने ऑर्गेनिजम्स की बेस्ड ऑन सेल। नाउ व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजिबल थ्रू आर नेकेड आइज। हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर वेरी स्मॉल, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। ओके, अब ह्यूमंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। आपको पता है हमारी बॉडी पे देयर आर बिलियंस ऑफ बिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हेन वी ब्रीथ हम पता नहीं कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहेल कर लेते हैं। हमारे स्टमक में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, कितने सारे बैक्टीरियाज मिलते हैं, बट दे ऑल आर गुड फॉर आवर हेल्थ। हमारे फूड को जो हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। कैसे? क्योंकि ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं, क्योंकि जैसे हमें पता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे ब्रीथ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये डिकम्पोज करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करके दे टर्न इट इनटू मैन्योर्स, जिसके हम वेस्ट थ्रो कर देते हैं। देखा नहीं है आपने कि वेस्ट फूड टर्निंग ब्लैक, जैसे पत्तियाँ होती हैं या हम ऐसा ही छिलके फेंक देते हैं, तो उसको वो क्या होता है, वो एक टाइम के बाद ब्लैक होने लगता है। पहले ब्राउन होता है फिर वो ब्लैक होता है। वाई इट हैपन्स? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे परफॉर्म सर्टेन रिएक्शंस, दे डू दे वेस्ट फूड पहले ब्राउन होता है फिर वो ब्लैक हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसको डिकम्पोज करते हैं। दे डिकम्पोज एंड दे टर्न दीज वेस्ट इनटू मैन्योर्स, जिसको कि हम फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा, नाम सुना होगा बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, ऐसा ही ह्यूमन या एनिमल वेस्ट जिसको कि हम विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज डिकम्पोज करते हैं और फिर लेटर उससे हम बायोगैस बनाते हैं और फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। तो हाउ इज दिस हैपनिंग? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Okay, so they are also called as environment cleaners. So here we come to the end of the chapter number 2 of your science. If you understood this well, if you like this video, then do like, share and subscribe, and comment down below if you have any queries, and do follow for more. See you in my next video. Thank you.